Today's topics are DNA, genes, chromatin and chromosomes, or else you can call it genetic material. Let us start with DNA. DNA क्या है देखते हैं. Suppose this is a cell. What is this? This is cell membrane. Then what is inside the cell? Jelly-like fluid, cytoplasm. Then what is there inside in the center of the cell? Nucleus. And inside the nucleus, this is nucleus. Inside the nucleus, there is our double-stranded DNA. This is one strand, look at this, and this is another strand. So DNA is double-stranded. So where is the location of DNA? Inside nucleus. See, cell membrane, cytoplasm, nucleus, and inside the nucleus there is DNA. We are going to see what is DNA. What we know about DNA? First thing, it is a genetic material. Second thing, it is helical. Helical means twisted. Third thing, it is, अभी मैंने बताया, double stranded. दो strands है, one strand, second strand. And lastly, it is located inside nucleus. Now, what are genes? Second, what are genes? As you can see in this picture, you can see cell membrane, nucleus, and we have already seen DNA का होता है nucleus के अंदर होता है, and that is our genetic material. So DNA is here. But now question is, what is genes? What are genes? So very simple. ये जो DNA है इसको मैं I take it out, और ये जो twisted है, ये आपको twisted helical दिख रहा है ना, I will make it a straight. मैंने इसको, this is one strand of DNA and this is another strand of DNA. ये दूसरा strand है, ये DNA को मैंने straight किया है. Let us take red color for that DNA. So this is one strand of DNA, this is second strand of DNA. Now what are genes? Question is, what are genes? Genes are segments of DNA. ये जो DNA इसको मैंने divide किया है, see this part. Now see this part, second part, third part, fourth part, fifth part, and so on. So what are genes? Genes are segments of DNA. So from here to here, यहाँ से यहाँ तक, consider this is gene 1. This is gene 2, this part is gene 3, this part is gene 4, this part is gene 5, and so on. So what are genes? What are genes? Genes are, what is this? DNA, and genes are part of the DNA, segments of DNA. Small segments of DNA are called genes. So logically, genes कहाँ present होते हैं? कहाँ present होते हैं? DNA के ऊपर. So genes are present on DNA. Now, what is the role of these genes? क्या role है इनका? So again, gene 1 is responsible, for example, to give you eye color. Gene 2 is responsible for your height. Gene 3 is responsible for your skin. Gene 4 is responsible for your hair. Gene 5 is responsible for the hemoglobin. कितना हीमोग्लोबिन है आपके बॉडी में, उसके लिए जीन 5 रिस्पॉन्सिबल है. इट मीन्स ये जो जीन्स है हमको एक पर्टिकुलर फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं. जीन्स गिव अस कैरेक्टरिस्टिक. जैसे जीन 1 हमको कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देता है? आई कलर. जीन 2 हमको यहाँ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है? हाइट. सो व्हाट आर जीन्स? जीन्स के बारे में अभी तक क्या पता चला हमको? जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए which gives us specific characteristics, right? And third thing, very important, genes are passed on from parents to offsprings. Offsprings मतलब next generation. तो ये genes pass on होते हैं, transfer होते हैं from one generation to other. Therefore, they are called as unit of inheritance. Heredity. Unit of inheritance कौन है? Genes. So what you know about genes? Genes के बारे में हमको क्या पता चला?
व्हाट आर जीन्स, कहाँ होते हैं, वेयर आर दे लोकेटेड, दे आर लोकेटेड ऑन डीएनए, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स है जीन्स। एंड व्हाट दे डू, जीन्स जो है एक एक जीन हमको क्या देता है, एक एक फीचर देता है, फीचर बोलो या फिर यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। एंड थर्ड थिंग वी कैन टू नो कि जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज क्रोमैटिन, व्हाट इज क्रोमैटिन। अभी तक हमने डीएनए देखा, हमने जीन्स देखे, नाउ वी विल सी व्हाट इज क्रोमैटिन। नाउ अगेन सेम डायग्राम, यू कैन सी सेल, न्यूक्लियस एंड डीएनए, न्यूक्लियस के साइड में डीएनए है वहां पे, राइट। व्हाट आई डू, मैंने क्या किया, डीएनए, लुक एट दिस डीएनए एंड द न्यूक्लियस। हम लोग थोड़ा सा इसका मेजरमेंट देखते हैं, लेंथ देखते हैं डीएनए का। डीएनए का जो लेंथ है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स, 2 मीटर्स। डीएनए का लेंथ इज 2 मीटर्स। एंड डीएनए कहाँ पे है, वेयर इट इज लोकेटेड, इनसाइड न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस का डायमीटर तो बहुत बड़ा होना चाहिए, राइट। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻6 मीटर, मीन्स 0.00001 meter. So DNA is 2 meter long, diameter of nucleus is 10⁻⁻6 meter. How come this 2 meter long DNA will accommodate inside the nucleus? How come it will accommodate? So this DNA, अब ये जो DNA है इसको अकोमोडेट होना है न्यूक्लियस के अंदर, बट इट इज 2 मीटर लॉन्ग एंड न्यूक्लियस का डायमीटर ओनली 10⁻⁻6 मीटर. इट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड. 2 मीटर लॉन्ग डीएनए अकोमोडेट नहीं हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर. सो इट विल बी कॉइल. ये होगा कॉइल, ये होगा सुपर कॉइल. इट विल बी कॉइल, सुपर कॉइल होगा एंड देन इट कैन बी accommodated inside the nucleus. For example, एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक सीधी रस्सी है, इसको हम ये न्यूक्लियस में अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, बट यही रस्सी को मैं ऐसे वुलन बॉल जैसे कॉइल कर लेती हूँ. देन आई कैन अकोमोडेट दिस फुल थ्रेड इन दिस न्यूक्लियस, राइट. सो डीएनए का क्या हुआ बताओ. जो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए था उसका क्या हो गया, सुपर कॉइलिंग हो गया. वो सुपर कॉइल हुआ, कॉइल, एंड नाउ डीएनए ही है बट इट इज नॉट डबल स्ट्रैंडेड, इट इज नॉट लुकिंग हेलिकल. सो इट इज कॉल्ड, ये जो ऐसे नेटवर्क जैसे हो गया है, कॉइल नेटवर्क, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. सो माई क्वेश्चन इज दैट आर जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमैटिन? Yeah, of course, because what is chromatin? Chromatin is coiled DNA and genes are present on DNA. अगर genes DNA पे present है तो genes chromatin पे भी present होने चाहिए ना, because chromatin क्या है, coil हुआ DNA है, right? Now we will see what are chromosomes. अभी हमने देखा just सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन. I will draw nucleus. और न्यूक्लियस में डीएनए होता है बट डीएनए कॉइल हो गया है अभी इनटू क्रोमैटिन नेटवर्क. दिस इज क्रोमैटिन. ओके, नाउ ये जो सेल है, ये सेल, इसको, ये सेल अभी रेस्टिंग है, कुछ काम नहीं कर रहा है. रेस्टिंग फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज. इंटरफेज, ओके. तो जब भी आप माइक्रोस्कोप में सेल देखोगे इन इंटरफेस, आपको क्रोमैटिन नेटवर्क दिखेगा. आपको डीएनए कभी नहीं दिखेगा क्योंकि डीएनए 2 मीटर लॉन्ग है. 2 मीटर लॉन्ग अकोमोडेट नहीं हो सकता है, तो डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिन. ओके, सो इंटरफेस में आपको दिखेगा क्रोमैटिन नेटवर्क. ओके, नाउ ओके, दिस सेल इन इंटरफेस लुक्स लाइक दिस. नाउ अब ये सेल को डिवाइड होना है. ओके, डिवीजन, सेल डिवीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट बता देती हूँ. ये जो एक सेल है इसके जैसे ही ऐसे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे सेम. ओके, सो अभी 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है. साइटोप्लाज्म का, बाहर साइटोप्लाज्म है, 2 सेल्स बनने वाले हैं.
तो 2 सेल्स में साइटोप्लाज्म का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अच्छे से हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ये जो पार्ट है क्रोमैटिन नेटवर्क, ये बहुत ऐसे मेसी है. इसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकते बिकॉज इट इज वेरी मेसी. ओके, सो ये फॉर्म अभी चेंज करना पड़ेगा सेल को. ये फॉर्म जो है क्रोमैटिन नेटवर्क का, ये अभी चेंज होने वाला है क्योंकि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना है. ओके, सो इंटरफेस में तो आपको क्रोमैटिन दिखेगा, बट सेल जब डिवाइड होने वाला है यू विल नॉट सी क्रोमैटिन नेटवर्क. क्रोमैटिन नेटवर्क अभी फिर से चेंज होने वाला है. जैसे डीएनए कन्वर्ट हो गया क्रोमैटिन में, नाउ अभी क्रोमैटिन तो है बट ये सेल को अभी डिवाइड होना है और इसके 2 इक्वल पार्ट्स बनाना है. तो इसको चेंज होना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू क्रोमोसोम्स. ओके, बट कब क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमोसोम्स में कब कन्वर्ट होता है, कब कंडेंस होता है? बाय सेल डिवीजन, व्हेन सेल इज डिवाइडिंग. तो सेल डिवीजन, अब ये सेल डिवाइड होने जा रहा है तो ये ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता है. इसको क्रोमैटिन को किसमें चेंज करना पड़ेगा? क्रोमोसोम्स. दिस इज सेल, दिस इज अवर न्यूक्लियस. ओके, अब ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये कंडेंस हो जाएगा इनटू क्रोमोसोम्स. सो दीज आर द क्रोमोसोम्स. This is chromosome number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on till chromosome number 22 and chromosome number 23 थोड़ा डिफरेंट होता है. We will see it later. वहाँ ऐसा दिखेगा, आपको XX दिखेगा और आपको दिखेगा XY. तो क्रोमोसोम नंबर 23. ओके, सो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर? ये क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया है. सो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इनसाइड अ सेल? ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम्स आर देयर एंड हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 23 पेयर्स. ओके, 46 क्रोमोसोम्स एंड 23 पेयर. सी क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 है पेयर. देयर इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 बाय 2 pairs, 1 from mother, 1 comes from father, 1 comes from mother, 1 comes from father. क्रोमोसोम नंबर 8 देखो 2 दिख रहा है. 1 chromosome will come from mother, 1 chromosome will come from father. Now these chromosomes are very clear. सेल डिवीजन में तो दिखते हैं, ये हमको पता है, बट सेल डिवीजन में भी कौन सी फेज स्पेशली ये आप लोगों को याद रखना है. क्रोमोसोम्स आर वेरी क्लियरली सीन इन मेटाफेज. मेटाफेज में आपको बहुत क्लियर दिखेंगे क्रोमोसोम्स. सो नाउ टेल मी वंस अगेन, व्हेन यू विल सी द क्रोमैटिन नेटवर्क, which phase you will see the chromatin network? Interphase. Which phase you will see the chromosomes clearly? Metaphase. Metaphase of cell division. When cell is resting, interphase मतलब क्या? Cell क्या कर रहा है? Rest कर रहा है. When cell is resting, you will see chromatin network. And when cell is dividing, cell जब divide हो रहा है, you will see chromosomes. So lastly, DNA, which is 2 meter long, gets coils and get converted into chromatin. क्यों chromatin में convert हो रहा है? To get accommodated inside the nucleus. Nucleus के अंदर accommodate होने के लिए वो coil हो रहा है. Okay? DNA gets converted into chromatin. Okay. Now chromatin condense होगा and gets converted into chromosomes. When कब? while cell is dividing. सेल डिवीजन के बाद क्रोमैटिन जो है वो कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम्स में. सो डीएनए, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम. नाउ वन क्वेश्चन. शुरू में मैंने बताया था जीन्स के बारे में. व्हाट आर जीन्स? वी ऑल नो जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए. ओके, सो दिस इज डीएनए. कंसीडर दिस पार्ट इज जीन 1, दिस पार्ट इज जीन 2, दिस पार्ट इज जीन 3. सो डीएनए का ही क्रोमैटिन जो है वो डीएनए ही है, डिफरेंट फॉर्म है. सो जीन्स, अगर जीन्स डीएनए में प्रेजेंट है इसका मतलब जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमैटिन नेटवर्क, राइट? एंड अगर क्रोमैटिन नेटवर्क का ही दूसरा फॉर्म क्या है? क्रोमोसोम्स है. क्रोमैटिन का ही क्रोमोसोम्स बने हैं, क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम्स बने, तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स. सो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, क्रोमैटिन एंड chromosomes. Everything is clear now with respect to DNA, genes, chromatin and chromosomes. Let us revise it fast.
First, DNA. What is DNA? Genetic material present inside nucleus. It is double stranded. This is one strand, this is second strand, and it is, what is the length of DNA? Approximately 2 meter long. Next, genes. What are genes? सेगमेंट ऑफ डीएनए. सपोज दिस इज अ डीएनए. ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड से ब्लू कलर के मैंने स्ट्रेट किया है, उसको ट्विस्टेड था उसको स्ट्रेट बना लिया है. सो व्हाट आर जीन्स? सेगमेंट ऑफ डीएनए. ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है डीएनए के, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं, उनको जीन्स बोलते हैं. जीन्स गिव्स अस कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल, दिस इज जीन नंबर 1. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर आई कलर. दिस इज जीन नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर. जीन नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट. इसका मतलब क्या है? जीन्स गिव्स अस कैरेक्टरिस्टिक्स. इनको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. ठीक है. थर्ड थिंग वी लर्न, जीन्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ओके, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये पास ऑन होते हैं. therefore they are called as functional unit of heredity. total genes on human DNA, suppose this is a human DNA. ये यहाँ तक मैंने 7 genes ये किए हैं. there are 7 genes here. Total genes on human DNA are approximately 25,000 to 30,000. Okay. Now again, this is a DNA strand, twisted form में है. यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाला जो part है, यहाँ से यहाँ तक वाला part, this is gene for making hair suppose. Then this is gene for making hemoglobin. So what are genes? Genes are parts of DNA. DNA के छोटे छोटे parts को क्या बोलते हैं? Genes. Now third, chromatin. So DNA के बारे में हमने पढ़ा. DNA is 2 meter long. It is present inside nucleus. But diameter कितना है nucleus का? Nucleus का diameter is 10⁻⁻6 meter and DNA का length 2 meter. 2 meter long DNA cannot be accommodated inside the nucleus. So DNA gets coiled, supercoiled and gets converted into chromatin network. फोर्थ, क्रोमोसोम्स. अब जनरल आप सेल को देखते हो, इंटरफेस में देखते हो, तो आपको क्या दिखेगा? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क. बट अभी ये सेल को डिवाइड होना है इक्वली. 2 सेल्स बनाने हैं, इक्वल सेल्स, डॉटर सेल्स. तो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये डिवाइड नहीं हो सकता ये फॉर्म में टू इक्वल पार्ट्स में. सो ये क्रोमैटिन नेटवर्क विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स. ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? देयर आर 46 क्रोमोसोम्स एंड कितनी पेयर्स? 23 पेयर्स. फर्स्ट 22 क्रोमोसोम्स ऐसे रहेंगे, 23 नंबर पे एक तो XX रहेगा एंड और XY रहेगा. सो आपको ये फॉर्म कब दिखेगा सेल का? ड्यूरिंग इंटरफेज, मतलब रेस्टिंग फेज. ये फॉर्म कब दिखेगा सेल का? ड्यूरिंग सेल डिवीजन. दैट टुक विच फेज? मेटाफेज. सो क्रोमैटिन नेटवर्क इज सीन इन इंटरफेज, रेस्टिंग फेज. क्रोमोसोम्स आर सीन while cell division in which phase? Metaphase. Let's see it again. This is DNA. DNA का कॉइलिंग हुआ है और क्या बना है देखो? क्रोमैटिन. एंड क्रोमैटिन का और कंडेंसेशन हो गया सेल डिवीजन के लिए और क्या बन गए? क्रोमोसोम. Hello students, today's topic is chromosomes. Let us revise it again. So see, 1, 2, 3, 4 up to 22. 22 pairs are there and 23rd number. 23rd pair is XX or XY. Now one from mother and one from father. There are 2 chromosomes. At एक नंबर 1 पे कितने क्रोमोसोम्स है? 2 क्रोमोसोम्स है. 2 सेम क्रोमोसोम है. One from mother and one from father. Now these 22, 1, 2, 3, 4 till 22. These chromosomes are called as autosomes. Autosomes. And क्रोमोसोम नंबर 23 पे जो ये XX है या फिर XY है, इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. सो क्रोमोसोम नंबर 1 to 22 ऑटोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर 23 सेक्स क्रोमोसोम. क्या डिफरेंस है इनमें, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम में? ऑटोसोम्स विल गिव अस जनरल फीचर्स लाइक स्किन कलर है, कल मैंने बताया था जीन्स का, हेयर कलर है, हाइट. ऑटोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड 23rd नंबर क्रोमोसोम जो कभी XX रहेगा कभी XY रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेक्स, वेदर वी आर मेल और फीमेल. इफ वी हैव गॉट X at the 23rd place, then the person is female. And if the person has got X and Y in the place 23rd place,
the person is male. So females XX and males XY. So this will decide whether the person is male or female. 23rd number chromosome will decide whether the person is male or person is female. Now look here. I have drawn chromosome number 1. See, one from mother, one from father. That is why it is a pair. Chromosome number 2 and chromosome number 3. Let us take example. ये chromosome number 1, 2 and 3. Now my question is, where are genes? Genes कहाँ है? What was the definition of gene? What is the definition of gene? Gene का definition है segment of DNA, right? तो DNA तो यहाँ पे नहीं है ना? DNA का क्या बन गया था? Chromatin network. And chromatin network से क्या बन गए थे? Chromosome बन गए थे. इसका मतलब ये है कि where are genes present? Genes are present on chromosomes. Chromosomes पे genes present होते हैं. Make it very clear. Genes are present on chromosomes. Now take a closer look at chromosome. Chromosome को हम पास से देखते हैं कैसे दिखता है, how it looks. So chromosome is made up of, ये एक sister chromatid है. This is one sister chromatid and this is second sister chromatid. This is second sister chromatid. So chromosome ये एक sister chromatid है और this is second sister chromatid. तो chromosome किससे बना है? Sister to sister chromatids. एक chromosome किससे बना है? Two sister chromatids. ये एक part and ये एक part. This is central part of the chromosome called as centromere. Centromere. And centromere के ऊपर एक cap होता है. That cap is called as kinetochore. See, while teaching also I am breaking words. Kinetochore. Kinetochore. One word है. And centromere. Again I am repeating, a chromosome, single chromosome is made up of two sister chromatids. Central part is called as centromere and the cap on the centromere is called as kinetochore. Sometimes here there is constriction, कुछ ऐसा spot होता है ends पे chromosome के, that is called as satellite. But for now you have to remember three things: sister chromatids, two sister chromatids, then centromere and then kinetochore. Now let us see what is diploid cell. Diploid cell. Di का मतलब होता है two. Two. Di means two. D means two. Diploid cell. Now this is a cell, nucleus. Again nucleus के अंदर क्या है? These are chromosomes. We are talking about chromosome. Chromosomes के pair है, right? Two pairs. Now what happens? जब cell में, in any cell, when there is pair of chromosome. Chromosome number 1 पे आपको दो chromosomes दिख रहे हैं. यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन. Third chromosome पे भी again there is a pair. इसका मतलब है there is two sets of chromosome. एक set कहाँ से आया है? One set has come from mother and second set has come from father. When there are two sets of chromosome, 1 and 2, in a cell, एक cell है जिसके अंदर दो सेट्स है क्रोमोसोम के, one from mother and one from father. That cell, two sets, that cell is called as diploid cell. That cell is called as diploid cell. So what is diploid cell? A cell which contains how many? Two sets of chromosome. कितने सेट्स है क्रोमोसोम के? दो सेट्स है. Because of two means di. That is why this cell is called as diploid cell.
नाउ दिस इज अ सेल और क्रोमोसोम नंबर 1 पे एक ही सेट है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम नंबर 2 ओनली वन सेट, क्रोमोसोम नंबर 3 ओनली 1, क्रोमोसोम नंबर 4 एंड सो ऑन। सिर्फ एक ही सेट है। यहाँ पे भी सेक्स क्रोमोसोम जो है 23rd नंबर का, वहाँ पे एक तो एक्स रहेगा या फिर वाई रहेगा। सो व्हाट इज दिस, यहाँ पे तो ये सेल में तो सिर्फ एक ही सेट है क्रोमोसोम का, देयर इज ओनली वन सेट। ऐसा सेल जिसमें सिर्फ देयर इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट सेल इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। ये हाफ हो गया ना, पहले हमने जो देखा डिप्लॉइड सेल, उसमें कितने सेट्स थे क्रोमोसोम के, 2 सेट्स थे, राइट। अभी इसमें कितने हैं, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब उससे जो पहले हमने देखा डिप्लॉइड सेल, उससे ये हाफ है, आधा है, इसीलिए हाफ मतलब हैप्लॉइड। सो दिस सेल इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड सेल। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल? द सेल which contains only one set of chromosome is called as haploid cell. Now look here, I have again drawn diploid cell draw किया मैंने, haploid cell draw किया है। Diploid cell में you can see 2 sets of chromosome, one from mother, one from father, and haploid cell में there is 1 set of chromosome. So एक difference तो हमको पता चल गया diploid cell and haploid cell का, 2 sets of chromosome and 1 set of chromosome, right? One difference. But question is ये where are these cells present? Diploid cell कहाँ होते हैं, haploid cell कहाँ present होते हैं? As far as humans are concerned, human body की बात कर रही हूँ। हमारी बॉडी किससे बनी है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर किससे बना है, सेल से बना है, राइट। सो ऑल आवर बॉडी सेल, ह्यूमन बॉडी सेल, सारे सेल्स बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑल आर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मीन्स कितने क्रोमोसोम्स है उनमें, 46 क्रोमोसोम। टेल मी, डिप्लॉइड में अगर 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन सेल में, तो हैप्लॉइड में कितने होंगे बताओ? हैप्लॉइड मीन्स हाफ, 46 का हाफ, तो कितने होंगे हैप्लॉइड सेल्स में, 23 क्रोमोसोम्स। तो सेकेंड डिफरेंस हमको पता चल गया अभी। डिप्लॉइड सेल कंटेन्स, फर्स्ट डिफरेंस इज डिप्लॉइड सेल्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेल 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल में हाउ मेनी क्रोमोसोम्स यू विल फाइंड, मैं जब ह्यूमन सेल की बात कर रही हूँ 46 क्रोमोसोम, और हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे आपको, 23 क्रोमोसोम्स, यू विल फाइंड 23 क्रोमोसोम्स, राइट। तो 2 डिफरेंस हमको पता चल गए। नेक्स्ट, अब ये डिप्लॉइड सेल, हमारे जो सारे बॉडी के सेल्स होते हैं, दे आर ऑल डिप्लॉइड सेल। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एल्गी, उनके सेल्स कभी कभी बॉडी सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, दैट वी विल सी लेटर। बट जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब कौन से सेल से बने हैं, उनकी सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर कौन से सेल है, डिप्लॉइड सेल। सो हमारे बॉडी में सब जगह कौन से सेल्स है, डिप्लॉइड। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स। एंड देन वेयर यू विल फाइंड दिस हैप्लॉइड सेल का फिर मतलब क्या है, कहाँ पे, वेयर यू विल फाइंड दिस, ये सेल भी हमारे बॉडी में पाया जाता है, बट फॉर सम टाइम इसका फॉर्मेशन होता है थोड़ी देर के लिए, और उसको गैमेट बोलते हैं। ओके, डिप्लॉइड सेल्स आर our body cells, they are also called as somatic cells. Okay, haploid cells are found in reproductive parts. If it is a male, it can be found in testes. In female, they are found in ovaries. Diploid cell को somatic cells बोलते हैं, haploid cell को gametes बोलते हैं. Now we know many more differences between diploid cells and haploid cell. One, diploid cell contains 2 sets of chromosome. Haploid cell 1 set of chromosome. Second, chromosomes as far as human cell is concerned, diploid cell में कितने, 46, haploid cell में 23. diploid cells are found in our body, पूरे body जो है वो diploid cell से बनी है हमारी, whereas haploid cells are found in reproductive parts. Diploid cells are also called as somatic cells. This is fourth difference. Haploid cells are also called as gametes. And lastly, because of 2 sets, अगर एक सेट को मैं n बोलती हूँ, तो डिप्लॉइड सेल का एक सिंबल है, डिप्लॉइड सेल को ऑलवेज इन द सिंबॉलिक लैंग्वेज वी विल
से 2n, डिप्लॉइड सेल को क्या बोलेंगे 2n, बिकॉज n इज सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है 2n. एंड देन हैप्लॉइड सेल को व्हाट वी विल कॉल हैप्लॉइड सेल n, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट वेर n इज सेट ऑफ क्रोमोसोम. एक सेट है क्रोमोसोम का n, टू सेट्स है क्रोमोसोम के 2n. सो डिप्लॉइड सेल 2n, हैप्लॉइड सेल n. Let us revise it again. What are chromosomes? Chromosomes are thread-like structures. Where they are found? They are found in nucleus. When they are seen during cell division. Cell division में कौन सा phase? Metaphase. They are seen in pairs. Pairs में होते हैं because one from mother, one from father. We are a product of sexual reproduction. That is why एक chromosome mother से आएगा, एक chromosome father से आएगा. Then they carry genes. Chromosomes के ऊपर क्या present है? Genes present है. And in humans there are total 46 chromosomes and how many pairs? 23 pairs. 23 pairs and 46 chromosomes. Again, thread-like structure found in nucleus during cell division, seen in pairs, one from mother, one from father, and they carry genes. Chromosomes carry genes. Total 46 chromosomes in humans and 23 pair. Now, first 22 chromosome, first 22 pairs are called as autosomes, and 23rd pair is called as sex chromosome. Sometimes it will be XY. In case of female, it will be XX, and if the person is male, 23rd number पे क्या रहेगा? XY, and if the person is female, 23rd number पे क्या रहेगा? XX. So female XX and male XY. 23rd number का chromosome change होगा depending on the sex of the person. Now next, genes. We know that genes are present on chromosome. Suppose ये chromosome है, so ये dash दिख रहा है आपको. This is eye color gene, eye color locus. This dash, this black color lining, hair color gene. Okay, so genes are present on chromosomes. Chromosome का structure हमने देखा है. Chromosome is made up of two sister chromatids. In the center there is centromere. Centromere has a cap-like structure called kinetochore. ये kinetochore आगे हम देखेंगे cell division के वक्त help करता है. Okay. Then we have seen haploid versus diploid cell. What is haploid cell? अगर if there is one set of chromosome inside cell, then that cell is called haploid cell. Haploid means half, मतलब n. If there are two sets of chromosome, then the cell is called as diploid cell. Diploid means 2n. Diploid is denoted by 2n. Haploid n. See again, this is diploid cell 2n. See two sets of chromosome, blue and red, two sets of chromosome. And haploid cell, which is denoted by n, there is one set of chromosome. Now question is, where these diploid cells are found and where these haploid cells are found in our body. So डिप्लॉइड सेल्स आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारी जो बॉडी है वो डिप्लॉइड सेल से बनी है. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स. 2n. सो सोमैटिक सेल्स बोलो या फिर डिप्लॉइड सेल्स बोलो. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स. 2n से बनी है. नाउ वेयर आर दीज हैप्लॉइड सेल्स फाउंड? हैप्लॉइड सेल्स can be found in reproductive parts, gonads जिसको बोलते हैं, such as testes in male and ovaries in female. Actually testes का जो original cell है that is diploid only, but वो फिर haploid cell बनाता है. Male का जो testes है जो जिसमें 2n cells रहेंगे, diploid cells रहेंगे, they produce n cell, haploid cell, और वो n cell को बोलते हैं sperms. एंड फीमेल में ओवरी सेल्स जो 2n होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, दे प्रोड्यूस
half haploid N cell, and that N cell is called egg or ovum. एंड टुगेदर स्पर्म जो टेस्टिस में बनते हैं जो हैप्लॉइड है, एंड ओवरी में जो एग या फिर ओवन बनता है जो हैप्लॉइड है, टुगेदर ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड एज गैमेट्स. हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड एज गैमेट्स. मेल्स में टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म. स्पर्म इज अ मेल गैमेट. एंड फीमेल्स में ओवरीज में क्या बनता है? एग और ओवम. एग और ओवम इज female gamete. Both gametes, sperm and egg, are haploid in nature. Haploid means N. So where are diploid cells found? Throughout the human body you will find diploid cells. But where you will find haploid cells? In the reproductive parts or gonads. Like males में testes and females में ovary.